Hello, my dear students. Good morning. I hope you all are safe and healthy at your homes. So, today we shall start chapter 3rd, Growing Up Pains. Growing up means increase, means बढ़ता हुआ. Pains means दर्द. अगर आपके अंदर कोई दर्द है जो दिन पे दिन बढ़ रहा होता है, so we call it growing up pains. This story is totally about the side effects, the hormonal changes of a teenage. Do you know what is teenage and what is teenager? So teenage means the every years of age that has at the ending with teen, like 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. So 13 to 19 we have the ending with teen. So the boys or the girls who are the between age 13 to 19 are called teenager, and the age between 13 to 19 is teenage. Understand what is teenage and what in teenager? It means 13 से लेके 19 के बीच की जो एज होती है that is called teen age, और 13 to 19 के एज के बीच के जो बच्चे होते हैं that is called teenager. So the whole chapter is just about the conflicts, the side effects of the teenage. उस वक्त क्या आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, व्हाट आर द बिहेवियर चेंजेस, जस्ट लाइक इट एज इट इज़. एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट टीनेजर इज कॉल्ड द स्टॉर्म ऑफ एज. तूफान की अवस्था कही जाती है इसे, बिकॉज देयर इज अ बिग ब्लास्ट इन दिस एज इन एवरी एस्पेक्ट, as you can notice in your behavior, in your nature, in your hormones, everything has changed. And because I hope that you are also a teenager, so you can correlate this story with you. Okay, so first we shall start about the author. I want to tell you about the author. The author is R.K. Murthy. R.K. Murthy wrote this story. R.K. Murthy is a leading Indian writer effectively serving the cause of children's literature. R.K. Murthy हैं वो एक एग्रेसिव, एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि आप आगे बढ़ते हुए इंडियन राइटर थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के ऊपर जो लिटरेचर था कि कॉज ऑफ चिल्ड्रन मीन्स उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस है, या उनके बिहेवियर को, उनके मन को पढ़ने के लिए जो लिटरेचर लिखे गए थे वो उन्होंने लिखे. He has authored over 50 books. उन्होंने कम से कम 50 बुक्स लिखी, एंड ही इज़ ऑल्सो रिसिपेंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स. उन्हें बहुत सारे, यह आप कह सकते हो कुछ अवार्ड्स भी मिले थे उनके लिटरेचर वर्क की वजह से. एंड नाउ कम टू द अबाउट द स्टोरी. स्टोरी किस बारे में है? ग्रोइंग अप पेन्स इज द स्टोरी ऑफ टीन एज बॉय समीर. I have already told you what is teenage term. Okay, so the whole story is about a boy named Sameer. The story shows the conflict between parents and then child, where parents try to be extra watchful. ये पूरी स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होती है कि आप कह सकते हो कि उन दोनों के बीच का जो संघर्ष है वो दिखाता है कि एक पेरेंट है और उनका बच्चा है, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग है. Whereas on the other side, a teenager needs extra space in his life to live in his own way and wants to take decisions independently. So the parents are extra caring. This is the way of caring regarding your child. This is the side of your parents. But on the other hand, a teenager needs extra space in his life. Sameer wants to extra space. वो चाहता था कि मैं कुछ अकेला रहूँ, कुछ करूँ अपने अकॉर्डिंग, इन हिज ओन वे, जैसा वो चाहता था. एंड वॉन्ट्स टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली. वो चाहता था कि जो भी वो डिसीजन ले, जो भी निर्णय ले, वो किसी के ऊपर डिपेंड होके ना रहे, इंडिपेंडेंटली ले, बिकॉज ही वॉज
extra young to take the decisions. Now start with the first line, growing up pains. On the hard words, I will tell you the meaning of the hard words. You can write down in your book or you can write in your register. Okay? Because there is no board, so I can't write it. So just I will tell and you will write. Okay, so now let's start the chapter. Life is hard, I tell myself. Here, Samir is talking to himself and said that life is very difficult. जिंदगी है वो बहुत मुश्किल है. I tell myself, मैं खुद से कहता हूँ. As I stand before the mirror and watch acne. Acne means pimple, like मुहासे. And you can also notice in your faces, yes, because you are also a teenager and teenagers have the side effect of the age. So Samir says that whenever I stand in front of the mirror, I watch acne, I watch pimple on my faces. The dreaded scum of a disease, and this is a very dangerous disease, and this is a very dangerous part of a disease. Playing havoc with my face. Havoc means damage, and these pimples have the damage on my face. I wish I could drive the pimples out with the wave of the hand, and I wish that those pimples have just swept out with the wave of the hand. मीन्स जस्ट मैं ऐसे अपने फेस के ऊपर हैंड ऐसे वेव करूं एंड दोज पिंपल्स हैव गॉन आउट, वो सारे पिंपल्स गायब हो जाएं. देन आई टेल माई सेल्फ दैट एक्ने इज अ टेम्परेरी रेवेज दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर अ टीनेजर. फिर समीर खुद से कहता है दैट एक्ने पिंपल्स आर टेम्परेरी रेवेज. रेवेज मीन्स नॉर्मली हल्का फुल्का सा डैमेज, कि मुझे लगता है कि जो एक्ने हैं वो थोड़े समय के लिए रेवेज होते हैं, दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर अ टीनेजर. एंड समीर टेल्स दैट दीज एक्नेस मेक लाइफ लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर अ टीनेजर. वो लाइफ को अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं. बट इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड मॉल्टिंग इनटू एन एडल्ट. मॉल्टिंग मीन्स चेंज होना, अपने आप के अंदर चेंजेस होना. So, but it is a sure sign. When acne shows on your face, then shows that you are molting, आप change हो रहे हो एक child से teenage के अंदर. You are just stepping ahead from the age to a teenage. Life is tough. I turn away from the mirror when it strikes me like a bolt of lightning. वो वापस से कहता है जिंदगी बहुत टफ है, वो मुड़ जाता है. टर्न अवे मीन्स मुड़ जाना. समीर टर्न अवे फ्रॉम द मिरर व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग मीन्स जैसे बिजली कड़कती है ना आसमान में, व्हेन द क्लाउड्स आर देयर इन द स्काई एंड यू फील दैट द रेन इज कमिंग. सो बोल्ट ऑफ लाइटनिंग मीन बिजली की कड़क की तरह वो सारी चीज़ें उसे स्ट्राइक्स करती है और वो अपने आप को मिरर से हटा लेता है. माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, ऑलमोस्ट रकस. कहता है कि मेरी आवाज़ भी भारी हो गई है. मोस्ट रकस मीन्स कर्कश, जो आवाज़ आपके कानों को अच्छी नहीं लगती, द अनप्लीजेंट साउंड. सो वो कहता है कि टीन एज के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं. मेनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टीनेजर लाइक एक्नेज आर ऑन योर फेसेस, सम हार्मोनल चेंजेस, your voice has changed. So there are many changes in teenager and he didn't like all this. It grades if I may eat. वो कहता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं लेकिन अगर मैं और कुछ इसमें ऐड करना चाहूँ तो वो भी हो जाएगा. Where has my sweet soft voice gone? Then Samir said that उसकी वो sweet वो soft voice कहाँ गई? Before the teenage, where was his voice has gone? Have I caught a cold? क्या मुझे किसी कोल्ड ने तो नहीं जकड़ लिया? क्या मुझे ठंड तो नहीं लग गई? एज यू नो ना दैट जब आपको ठंड होती है, जब आपको जुकाम या कोल्ड होता है, योर वॉइस गेट रफ. सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विद अ कोल्ड. और धीरे धीरे यही ग्रफनेस, यही हार्डनेस उसकी वॉइस को जकड़ लेती है. बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर. But this is not common cold. This is the side effects of the teenage. And I have nothing to do with each other. अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. At least at this moment. At least इस समय पर तो.
is there any uncommon cold? Now Samir asked to himself that is there any uncommon cold? A light banter lifts my spirits. Banter means मजाक उड़ाना. अब उसकी यहाँ पे उसकी जो सेल्फ सोल होती है, जो उसकी अंतरात्मा होती है, वही उसका मजाक उड़ाती है कि क्या तुम्हें रियली लगता है दैट दिस इज अनकॉमन कोल्ड? अ कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड. वो कहता है कॉमन कोल्ड तो सारे इंसान को होता है. मैनकाइंड मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स, सबको होता है. बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा. बट हियर हिज पेरेंट्स आर वेरी केयरिंग. वो कहता है कि अगर भूल से भी मुझे कभी कोल्ड हो जाता है या जुकाम हो जाता है तो मेरे अप्पा एंड अम्मा मीन्स his father and his mother. अम्मा refers to his mother and अप्पा refers to his father. कि वो दोनों तो बहुत ज़्यादा अनकॉमन बिहेव करते हैं. They think I have come down with a dangerous cold. उन दोनों को लगता है कि उसे तो बहुत ज़्यादा भयानक कोल्ड ने जकड़ लिया है. One that could kill. और इतना भयानक कोल्ड कि वो उसे मार देगा. They force me into bed, send for the doctor who pumps all sorts of medicines into my system. वो मुझे बेड पे सुला देते हैं फोर्सली और बाद में डॉक्टर के पास भेज देते हैं. हु पम्प्स ऑल द सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन. और वो पम्प्स ऑल द सॉर्ट्स ऑफ मीन्स इंजेक्शन, टू पुट द इंजेक्शन. तो कहते हैं और इतने सारे इंजेक्शन लगा देते हैं मेरी बॉडी में कि मैं कोल्ड से ना मरने की बजाय इंजेक्शन को देख के डर जाता हूँ. ओके, कम टू थर्ड पैरा. When I tease them for being overprotective, I always refers to Samir. Okay, so Samir says that जब भी मैं अपने पेरेंट्स को ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग होने के लिए कंप्लेन करता हूँ, दे ग्रंट. ग्रंट मीन्स गुर्रा के बोलना. हाउ वुड यू नो? कि तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानते हो? यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स. तुम तो अभी बहुत छोटे हो हमारे फियर्स को जानने के लिए, हमारे डर को जानने के लिए. हियर इज द को कंजक्शन इज यूज्ड. एज यू कैन सी, टू एंड टू. सो टू एंड टू इज अ को रिलेटिव कंजक्शन एंड इट ऑलवेज यूज अ नेगेटिव सेंस. टू इट मीन्स तुम इतने यंग नहीं हो. देयर इज नॉट यूज एनी नॉट, बट द use of to is always saying the negative sentence कि तुम अभी इतने यंग हो कि तुम हमारे फेस को समझ नहीं सकते. ओके नेक्स्ट. आ ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आवर आई. कि हमारा सिर्फ इकलौता बच्चा. एप्पल ऑफ आवर आई इज अ ईडियम. इट मीन्स आंखों का तारा होना या बहुत ज्यादा प्यारा होना. लाइक यू ऑल्सो फील ना दैट यू आर ऑल्सो द एप्पल ऑफ आवर आई. यस, अपने मम्मी पापा जब बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सो यू आर ऑल्सो द एप्पल ऑफ देयर आइज. एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स. और मुझे लगता है कि जैसे वो मेरे सारे के सारे डर को जानते थे. आई टू हैव माई फियर. मेरे भी अपने कुछ डर आए. ऑल्सो माई फियर. इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे. और ये सिर्फ आज नहीं, ये हर दिन होता था. बट सडनली आउट ऑफ नाउ वेयर इट हैज अपीयर्ड. लेकिन अचानक से ये डर पता नहीं कहाँ से अपीयर हो जाते थे. इट फील्स ऑल माई वेकिंग थॉट्स एंड हॉन्टिंग माई ड्रीम्स टू. और ये सारे के सारे डर कभी मेरे थॉट्स को जगाते तो कभी मेरे ड्रीम्स में आके मुझे डराते. हॉन्ट्स मीन्स होता है टू बी स्केयर, डराना, कि भी मुझे ड्रीम्स में डराते. आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर. डिस्पेल मीन्स होता है मूव अवे, भगाना. आपके सामने मान लो कोई आता है क्रिएचर वगैरह, तो आप क्या करते हो, उसको डिस्पेल करने की कोशिश करते हो. सो जस्ट एज व्हेन द फियर कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई ट्राई टू डिस्पेल, आई ट्राई टू मूव अवे फियर. आई टेल माई सेल्फ. समीर टेल्स हिमसेल्फ ओनली कावर्ड्स फियर, आई एम नो कावर्ड. कि सिर्फ कावर्ड मीन्स होता है डरपोक. कि सिर्फ डरपोक ही डरते हैं, उनके ही डर होते हैं, एंड मैं डरपोक नहीं हूँ. बट दिस ब्रेवेडो डजंट लास्ट लॉन्ग. ब्रेवेडो मीन्स गीदड़ भपकी, जो झूठी शाबाशी देते ना खुद को, दैट इज कॉल्ड ब्रेवेडो. लेकिन यहाँ पे उसकी ये झूठी धमकी बहुत देर तक टिकती नहीं है. लास्ट लॉन्ग मीन्स बहुत देर तक. सो डजंट लास्ट लॉन्ग, बहुत ज्यादा देर रहती नहीं है. कम टू नेक्स्ट.
द मोर आई थिंक ऑफ इट, कि मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, ये जो डर है ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रहता है मेरे साथ. आई एम नो लॉन्गर माई यूजल सेल्फ, मैं खुद के जैसा ही नहीं बन पा रहा हूँ, और काफ़ी देर तक जो खुद को एक छोटी शाबाशी देना चाहता हूँ वो रहती ही नहीं है. आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं तो खुद के लिए ही, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, अननोन पर्सन, कि मैं तो खुद के लिए ही अजनबी बन जाता हूँ. Till the other day I used to feel happy when Amma walked in unannounced surveyed the room. कि अगले दिन मैं हमेशा जब भी खुश होने की कोशिश करता हूँ या कुछ हैप्पी मोमेंट सोच रहा होता हूँ, अचानक से अम्मा अनअनाउंसमेंट, बिना कुछ बोले, बिना अनाउंस किए, सर्वेड द रूम का सर्वे करने आ जाती है. लाइक योर मदर. यस ना. जैसे ही वो कुछ सोच रहा होता है, हिज अम्मा एंटर्ड इन द रूम विदाउट एनी परमिशन, विदाउट नॉकिंग एट द डोर, एंड जस्ट रूम के अंदर एंटर कर जाती है. जेंटली चैडेड मी, और वो बहुत ज़्यादा जेंटली, चैडेड मीन्स होता है डांटना, स्कॉल्ड, वो बड़े प्यार से ही, नॉर्मली सॉफ्टली, जैसे आपकी मदर आपको डांटती हैं, जस्ट एज हिज मदर चाइडेड हिम, स्कॉल्डेड हिम. इज दिस अ रूम और अ पिग्स्टाई? पिग्स्टाई मीन्स जहाँ पे सुअर रहते हैं, सुअर का बाड़ा. तो वो कहती है कि इज दिस अ रूम और अ पिग्स्टाई, ये तुम्हारा रूम है या पिग्स्टाई है? एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और उतनी ही जल्दी से वो रूम की सफाई करने में लग जाती है. शी स्टार्टेड टू क्लीनिंग द रूम. शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, पूरे फुल ऑन डेडिकेशन से वो पूरा रूम साफ करती है. द बुक्स वुड गो बैक इन टू द बुक केस और साइड रैक, बुक्स को वापस से बुक केस में या साइड रैक में रखती है. द कैप्स एंड द पेन्स पुल्ड अपार्ट बाय मी, और जो भी पेन होते हैं, उनके जो कैप्स होते हैं, दैट पुल्ड अपार्ट मीन्स खींच के अलग कर देना. पुल्ड अपार्ट बाय मी वुड गेट रीयूनाइटेड, वापस से उनको साथ रखा जाता है. Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin, और जितने भी छोटे छोटे टुकड़े या crayons के pieces होते हैं जो फ्लोर पे पड़े रहते हैं, उनको वापस से डस्टबिन में डाल दिया जाता है. The dust would be swept off the table, टेबल की जो डस्ट है, swept off means पोंछ के साफ कर देना, साफ कर दी जाती है. And the room would gain a fresh look, and Amma makes my room again fresh and new. So Amma did her duty with very full of dedication. How I hate her now when she does that. Now Samir asked himself that how can he hate his mother when his mother is so caring, so full of dedication. I have put up a warning on the door, but Samir wants to be independent. He wants to some privacy. So he put a note on his door. नॉक बिफोर यू एंटर, कि जब भी अंदर आए उससे पहले नॉक करें. बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज अ वार्निंग, उसी के नीचे, बीनीथ मीन्स अंडर, उसी के नीचे एक छोटी सी वार्निंग एज ए इंस्ट्रक्शन लिखी होती है. माई रूम, लव इट और हेट इट, कि मेरा कमरा है, चाहे मैं इसे प्यार करूं, चाहे मैं इससे नफरत करूं, बट दिस इज माई रूम. हाउ एवर इज शी अनटाइडी, बट स्टिल दिस इज माई रूम. Amma sees the notice but behaves as if it is Greek or Latin. So come to next page, कि अम्मा क्या है, नोटिस देखती है, बट वो ऐसे बिहेव करती है कि वो जो नोटिस की जो लैंग्वेज है वो या तो ग्रीक है या लेटिन है, जो उन्हें समझ में नहीं आती. एंड ऑल्सो शी डजेंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द नोटिस, शी ऑलवेज जस्ट इग्नोर इट एंड एंटर इन द रूम. She continues to step into my room unmindful of my privacy. वो अभी भी उसी तरह कंटिन्यू रहती है मेरे रूम में आना, कि बस बिना अनाउंस किए, अनअनाउंस्ड एंट्री इन द रूम, अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी को तो किसी को ध्यान ही नहीं रहता. हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी, मैं उन्हें कैसे समझाऊं दैट आई नीड प्राइवेसी, मुझे भी अपनी प्राइवेसी की ज़रूरत है. If only she senses the gossamer thin curtain that has come up between me and my parents. और मैं ऐसे सेंसेस करता था. गॉसमर थिन मीन्स बहुत ज़्यादा पतले, जैसे आपने कभी देखा ना, बहुत थिन जो लेयर वाले कर्टेन्स होते हैं. सो समीर फेल्ट दैट देयर इज अ गॉसमर थिन, बहुत ज़्यादा एक पतला कर्टेन उनके रिलेशन के बीच में आ गया था, उनके पेरेंट्स और समीर के बीच में.
It is this what growing up is all about, a matter of individuality, a snapping of poles. तो वो कहता है कि क्या ग्रोइंग अप एक मैटर है अपनी इंडिविजुअलिटी का. इट मीन्स समीर आस्क अ क्वेश्चन टू हिमसेल्फ एंड टू द अदर टीनेजर कि क्या टीन एज इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, क्या हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है. एंड अ स्नैपिंग ऑफ बोन्स, स्नैपिंग ऑफ बोन्स मीन्स रिश्ते तोड़ना, कि क्या जस्ट टीन एज में एंटर करते ही हम लोग क्या सिर्फ रिश्तों से अलग होना शुरू कर देते हैं. बट दिस इज द रियलिटी. Okay, come to the my point that you thought that teenage is just matter of individuality and the snapping of bones, but this is not the reality. Teenage is just a part of your life that will change you, that will show you that how to behave in your life, how to synchronize with the things that have changed. कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, बट फिर भी हमें किस तरह से उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, किस तरह से कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए. एंड रिमेंबर वन थिंग, पेरेंट्स आर नेवर वॉन्ट्स दैट यू हैव टू अपार्ट फ्रॉम देम. सो जस्ट बी विद देम. हमेशा अपने पेरेंट्स को समझो एंड उनके साथ रहने की कोशिश करो. हु वॉन्ट्स टू स्नैप बोन्स विद वंस पेरेंट्स. वो फिर खुद से ही पूछते हैं कि कौन है ऐसा जो अपने पेरेंट्स से अपने बॉन्ड को, अपने रिश्ते को तोड़ना चाहेगा. नॉट आई, मैं तो नहीं हूँ. द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई. समीर कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता और यही थॉट मुझे बार बार रुलाता है. येट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम दैम. वो कहता है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ तो है जो मुझे उनसे ड्रॉ अवे कर रहा है, उनसे दूर कर रहा है. और एम आई इमेजिनिंग. वो कहता है क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्या ये सब मेरी सोच है. आई थिंक अप्पा इज वॉचफुल एंड वेरी विद व्हेन ही मीट्स मी. कि अप्पा तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, जब भी वो मुझसे मिलते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव है. वेरी मीन्स अटेंटिव है. ऑफ कोर्स हिज आईज ग्लीम विद जॉय वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस. वो कहते हैं हाँ, और उनके आईज हमेशा ग्लीम विद जॉय मीन्स खुशी से चमक जाना. जब भी वो मुझे देखते हैं, वेन एवर he sees me, his eyes is just full of gleam, full of happiness. But is it as spontaneous as it used to be? लेकिन क्या ये इतना ही spontaneous, क्या ये इतना ही लगातार अवस्था में बना रहेगा, इतना ही effective way में रहेगा जैसा ये है? Or am I unable to feel its warmth because of the curtain that has come up between us? या फिर मैं सिर्फ उनकी जो केयरनेस है, उनके जो अफेक्शन है, उसको फील कर पाने में अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ थिन लेयर ऑफ कर्टेन बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स. मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टेन. कहता है हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंकेबल कर्टेन. देयर इज नॉट द रियल कर्टेन, इट्स जस्ट अ थिंकेबल के बस वो सोच रहा है दैट देयर इज अ कर्टेन बिटवीन देम. कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कर्टेन ही सीज मी एज समवन डिफरेंट. वो मुझे वैसे नहीं देखते जैसे मैं हूँ, वो मुझे कुछ अलग देखते हैं. A rather misty figure, imprecise, vague and elusive, developing a form that is difficult for him to gauge. और इस कर्टेन की वजह से मे बी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस्टी फिगर मीन्स होता है अनक्लियर इमेज, कि वो मुझे क्लियरली नहीं देख पा रहे. हु एम आई. इम्प्रिसाइज मीन्स रॉन्ग, कि कभी कभी वो मुझे गलत भी समझते हैं. वेग मीन्स धुंधला, कि मेरी जो रियल कैरेक्टर है वो नहीं देख पा रहे, वो मुझे कुछ न कुछ धुंधले दिखाई देते हैं. एंड इल्यूसिव एंड डेवलपिंग, कुछ मायावी, कुछ भटकाने वाली चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें मेरे नेचर को देखने में कुछ न कुछ बीच में उन्हें रोक देती हैं. और यही डिफ़िकल्ट करता है उन्हें मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव बनने से रोकने के लिए. मे बी ही टू इज स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर. यही है कि ये पूरा न्यू फिगर मुझे और ज़्यादा स्केयर्ड कर देता है अपने मदर फादर की केयरनेस को लेकर. इज दैट वाई एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवरटली अफेक्शनेट. कि क्या यही होता है, और क्यों हर बार यही होता है कि वो हमेशा अपने अफेक्शन को शो करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं. आई डू नॉट नो.
मुझे नहीं पता. मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाय ट्रीटिंग मी विद कॉशन. कि हो सकता है वो अपने अंदर के इस डर को खत्म करना चाहते हो कि हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, इसलिए कुछ ऐसा एक्शन करते हैं. ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज अ चाइल्ड. कि माई फादर ऑलवेज फाइंड सेफ्टी whenever he sees me, and he cares his affection to me and treats just like as a child. उन्हें और ज़्यादा अच्छा लगता है. He runs his fingers through my thick curly hair. कि वो जब भी मुझे देखते हैं वो अपने हाथों की उंगलियां ऐसे मेरे थिक और कर्ली मीन्स घुंघराले, थिक मीन्स घने, कि जब भी घने घुंघराले बाल देखते हैं मेरे पापा, वो जस्ट अपनी फिंगर्स मेरे बालों में ऐसे रन करते हैं. होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पेट्स मी. वो अपने मेरे सिर को अपनी चेस्ट के पास लगा के मुझे हक करते हैं. पेट्स मीन्स होता है थपथपाना, प्यार से जब थपथपाते, दैट इज कॉल्ड पेट्स. आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट. कि मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सिर्फ इस कारण से, इस रीज़न से, इस वजह से मैं उनसे हेट करता हूँ. बट आई एम नॉट एबल टू एन्जॉय इट एज आई यूज टू. लेकिन जब मैं छोटा था, वेन एवर आई अ चाइल्ड, आई अ किड, I also enjoyed all those moments with my father. But now, as I have grown up, as I am a teenager boy, so I am not enjoying all these things that my father did with me. Once I would give the whole world for being held lovingly by Appa. कि मुझे जो भी पूरा वर्ड मेरे फादर ने, मेरे अप्पा ने मुझे दिया, मैं उसे होल्ड करना चाहता था. नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नॉट वॉट अप्पा शुड डू टू मी. लेकिन अब मुझे फील होता है, एज आई एम अ टीनेजर, सो अब मुझे फील होता है कि ये जो भी अप्पा ने मेरे लिए किया वो ठीक नहीं है, वो मुझे अब अच्छा नहीं लगता. आई टेल माई सेल्फ दैट ही ट्रीट्स मी एज अ ग्रोन अप. मैं बार बार अपने से कहता हूँ कि वो मुझसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, ग्रोन अप हो रहा हूँ. स्पेशली वैन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन. और स्पेशली तब जब वो मुझे अपने आप जैसा होने के लिए कहते थे. बिकॉज some circumstances he just tells me that behave like a child, and on the other circumstances he tells me to behave like a young person. So still I am confused that what am I, a kid or a young? I fall and slip and screamed with pain because of a sprain. एक दिन मैं गिर जाता हूँ, स्लिप हो जाता हूँ और बहुत जोर से चिल्लाता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में पूरा पेन होता है. अम्मा इज ऑल काइंडनेस नॉट अप्पा. अम्मा तो बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, बहुत ज़्यादा काइंड थी, बट अप्पा नहीं थे. ही ग्रॉल्स, वो कुछ बोलते हैं, गुर्राते हुए बोलते हैं, यू आर 14 समीर, कि तुम अब 14 एज के हो चुके हो. इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बी अ पेन विथ स्टॉइक करेज. कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें सीखना होगा. पेयर मीन्स होता है सहन करना, कि अब तुम्हें अपने दर्द को सहन करना होगा. एक स्टॉइक करेज, स्टॉइक मीन्स होता है सहनशील, पेशेंस. कि अब तुम्हें एक बहुत ज़्यादा पेशेंस फुल ऑफ करेज से सीखना होगा कि दर्द को कैसे सहन करते हैं. यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड. अब तुम बच्चे नहीं रहे. सो दिस टाइम समीर कंफ्यूज दैट आई एम यंग और अ किड, बिकॉज whenever I cry, my father told me that you are just not a child, you have to grow up. I cannot forget those words. समीर कहता है मैं उन वर्ड को भूल ही नहीं सकता कि मेरे अप्पा ने अभी मुझे कहा था कि मैं जस्ट एक बच्चा नहीं हूँ, सो मुझे ग्रोन अप होना पड़ेगा, दर्द को सहन करना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट साइड. नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस. अगले दिन जब अप्पा ऑफिस से आते हैं, आई वॉक अप टू अम्मा. मैं अम्मा के पास जाता हूँ. शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल. मेरी जो अम्मा है वो बहुत अच्छी स्माइल से, बिग स्माइल से मेरा वेलकम करती है. बट द स्माइल रन्स इनटू अ फ्रॉन व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस. लेकिन उनकी स्माइल ही बहुत जल्दी त्योरियों में बदल जाती है. फ्रॉन मीन्स होता है त्योरियां चढ़ना या तेवर बदल जाना, कि जस्ट उनकी स्माइल है वो फ्रॉन में चेंज हो जाती है जब मैं उनसे पूछता हूँ, व्हेन आई आस्क्ड हर दैट कैन आई गो टू विशाल्स हाउस फॉर अ पार्टी, कि क्या मैं विशाल के घर पार्टी के लिए जा सकता हूँ. मस्ट बी बैक बिफोर 9. अम्मा सेज, मेरी माँ बोलती है कि चले जाओ बट 9 बजे से पहले आ जाने चाहिए. अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ.
तो यहाँ पे समीर अपनी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा मैं बड़ा हो चुका हूँ, कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, कि क्या मैं तब तक नहीं रह सकता जब तक सारे मेरे फ्रेंड्स ना चले जाएं. यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन. समीर, यहाँ पे उसकी अम्मा बोलती है कि क्या तुम्हें रियली लगता है कि तुम बड़े हो चुके हो. रिमेंबर यू आर स्टिल अ चाइल्ड इवन दो यू थिंक अदरवाइज, कि अभी तुम कुछ भी सोचो बट याद रखना स्टिल यू आर अ चाइल्ड, अभी भी तुम एक बच्चे हो. यू आर एट एन इन बिटवीन एज अ टीनेजर, तुम ना अभी किड हो ना तुम यंग हो, तुम इन बिटवीन एज हो जिसको टीन एज बोलते हैं, एंड यू आर अ टीनेजर. सो दिस इज द अदर साइड व्हेन समीर ऑल्सो गॉट कंफ्यूज्ड. On the other hand, my appa says that I am young, but this time amma is saying that I am a child. Then what am I? मैं हूँ क्या? I'm still confused. That raises my hackles. यहाँ पे hackles means normally होता है, raises my hackles means normally जो घोड़े हैं उसके जो गर्दन के बाल होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे raises my hackles यूज हुआ है become aggressive. अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बिकॉज समीर समझ ही नहीं पाता कि वो किसकी तरह बिहेव करे, लाइक अ किड और लाइक अ यंग पर्सन. आई स्टैम्प माई फीट शाउट एट हर, मैं जोर से पैर पटकता हूँ और अपनी मदर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता हूँ, आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन, और मुझे पता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए. आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड, और मैं कभी भी अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करने के लिए कभी अलाउ नहीं करूंगा. शी गिव्स मी अ स्टर्न लुक एंड असर्ट्स फर्मली. स्टर्न मीन्स होता है अनकाइंड, कठोर, और असर्ट्स मीन्स दृढ़ता से कहती है. अब यहाँ पे उसकी मदर है, उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लुक देती है. आप लोगों ने भी फील किया होगा ना, वेन एवर यू बिकेम एंग्री एंड जस्ट शाउट्स in front of your father or of your mother and they give a stern look. देखा होगा ना कैसे घूर के देखते, जस्ट लाइक इट इज. एंड असर्ट्स फॉर्मली, बड़े ही दृढ़ता से उसको बोलती है, माई डिसीजन इज फाइनल, कि मेरा डिसीजन फाइनल है. नो पार्टी फॉर यू, आज के बाद कोई पार्टी नहीं. नॉट टुडे नॉट एवर, न आज और न कभी. आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज अ वाइल्ड कॉट, कि मैं नहीं चाहती कि तुम एक वाइल्ड कॉट की तरह, कॉट मीन्स द चाइल्ड ऑफ अ हॉर्स, के एक वाइल्ड कॉट की तरह बिहेव करो एंड इसी तरह से अपने जीवन को खत्म कर दो. सो दिस इज द वार्निंग ऑफ हिज अम्मा. सो टुडे वी ओनली रेड द 2 pages 15 and 16. So this is the whole story about the teenage boy Sameer. In the next session class we shall continue this chapter. Okay, so I just give you a small revision. There is a teenage boy Sameer who doesn't want to be overprotective parents. He doesn't want that his parents are more caring for him. So still he has his own fears and he started to fight with the fears. And he wants to know that what he is, कि वो क्या है. He is a kid, एक छोटा बच्चा, और a teenager रहते हुए still a young person. So that's it from today. Now you will write in your register first chapter name, then about the author, about the story and glossary. Remind this that you have to write glossary also. And then comprehension and true false you will do in your book. Again I telling you that only chapter name, about the author, about the story and glossary part should be written in your notebook, and comprehension part A and B, tick the correct alternative and state whether the statements given below are true or false should be written in your book. ये सिर्फ आपको बुक में करने हैं. So first, which is a sure sign of a child molting into an adult. So what is the sign? क्या साइन है, क्या संकेत है कि आप एक बच्चे से टीन एज में चेंज हो रहे हो. सो बी ऑप्शन, एक्ने. What was the warning written by Sameer on the door of his room? क्या लिखा था उसने? Yes,
डी ऑप्शन, नॉक बिफोर यू एंटर, कि जब भी एंटर करो हमेशा नॉक करके आओ. हाउ ओल्ड वॉज समीर, समीर कितना एज का था? यस, टेल मी. इन द स्टार्टिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यस यस यस. He was just 14 years. Okay, I hope you all understand it. So just continue this work in your register, in your notebooks, and just learn the glossary part. I hope you all enjoy my class, and again wish you a very have a and happy nice day. Stay, keep and stay healthy at your homes, and just enjoy your life. Thank you, beta.